student of class 12 science. In this particular year of 21-22 session, some pattern of the question has been changed. Some new type of question are likely to be asked in the exam. Like number one, MCQ, which earlier also they have asked the question. And second type is your assertion reasoning question. That's the new pattern. Assertion reasoning question. And third type is your case study based question. Right? So, especially in term 1 this of the CBSE exam, this type of question will be asked. So, in this video, we are going to discuss the assertion reasoning based question. And after that, the case study based question. Case study based question means one paragraph will be given and 5 questions will be there, having the multiple choices. And out of 5, you have to solve any 4 correctly by seeing the passage. That is the case study based question. But in this video, we are going to discuss about the assertion reasoning based question. Assertion reasoning. So, in the assertion reasoning based question, you have to see the assertion and reasoning and try to understand, ponder over the assertion and the reasoning. Assertion को ध्यान से पढ़ना है और reasoning को ध्यान से पढ़ना है. Assertion को सही है या नहीं है, reasoning सही है या नहीं है, reason जो दिया हुआ है क्या वो assertion का सही logic, सही reason है, ये सब analyze करना है. So there will be 4 options usually. Option A, both A and R. A means assertion, R means reason, are true, and R is the correct explanation of A. Now, and the B option, if both A and R are true, दोनों सही है, but R is not the correct explanation of A, means assertion. Option C, A is true, but R is false. And option D, A is false, R is true, reason is true. So this we are going to take some examples and see some examples how to solve this type of question, assertion and reasoning question. Assertion and reason based question. What are the options? Option A, if assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, means assertion. Number B, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Number C, A is true, but R is false. Number D, A is false, but R is true. Take some examples. Example number 1. Assertion. In a non-uniform electric field, a dipole will have a translatory as well as rotatory motion. देखो पॉइंट ये है कि assertion reason वाला क्वेश्चन बनाने से पहले पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट पिक्चर, फॉर्मूला, कंसेप्ट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोसीड फॉर द मे बी द assertion reason based क्वेश्चन और द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. पूरा कंसेप्ट होने के बाद ये इजीली बन जाएगा. ये assertion एग्जाम्पल 1, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा है और उस डाइपोल में ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन होता है. रीज़न क्या दिया है? इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क. अब हमको दोनों देखना है. वी हैव टू सी बोथ ए एंड आर. अब ए में क्या है? एक डाइपोल है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. अगर ये यूनिफॉर्म में होता है तो हमको मालूम है कि टॉर्क कितना होता है. टॉर्क इज योर क्यू ई ट्वाइस एल साइन थीटा. ये फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए. कहाँ से आया? टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, वहीं से टॉर्क. अब हमको नॉन यूनिफॉर्म है तो मीन्स इसका जो नॉर्थ पोल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, सब पर अलग अलग फोर्स लगेगा. तो इसमें क्या ऑप्शन सही होगा?
ये तो हो गया यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म अगर है तो P क्रॉस E। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है देन फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल एंड द फोर्स जो लगेगा इस डाइपोल में अनइक्वल लगेगा। अनइक्वल फोर्स विल बी एक्टिंग। अनइक्वल, वाई अनइक्वल? क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब अगर इक्वल होता तो इक्वल फोर्स लगता। जहाँ पर अनइक्वल फोर्स है तो यहाँ पर होगा क्या? देयर विल बी ए कम्बिनेशन ऑफ द कपल एंड द नेट फोर्स। यहाँ पर कपल और एक सिंपल लीनियर फोर्स लगेगा, ट्रांसलेटरी। तो जहाँ पर कपल आया मीन्स अब ये डाइपोल है, इसमें अलग अलग फोर्स लग रहा है, तो ये इसको रोटेट भी कराएगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा इसमें। सो इट विल हैव बोथ रोटेशनल एज वेल एज लीनियर मोशन। ठीक, तो ए और आर में हम क्या देखेंगे कि यहाँ ए एकदम सही है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। ठीक है, तो ये वाला क्या फॉर्मूला था फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो यही चीज़ याद रखना है, इसमें अनइक्वल फोर्स लगेगा, इसीलिए टॉर्क यहाँ पर लगना शुरू करेगा, टॉर्क एंड कपल। सो रोटेटरी मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन दोनों होगा। सो आंसर इज ए ऑप्शन सही होगा। ए मीन्स ए ऑप्शन, नॉट एसर्शन। ए ऑप्शन क्या बोलता है? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये दोनों सही होगा। टेक अनदर एग्जाम्पल, नंबर 2, assertion: the basic difference between magnetic lines of force and electric lines of force are discontinuous and magnetic lines of force are continuous. ठीक है, अब इसमें हमको रीजन भी देखना है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन ए मैग्नेट बट नो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इन ए चार्ज बॉडी। तो हम लोग ये इस क्वेश्चन को समझने से पहले, जैसे यहाँ पर एक प्लस क्यू माइनस क्यू, तो हम कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, रफली लाइक दैट। देयर शुड नॉट बी एनी इंटरसेक्शन। पॉजिटिव से निकला और निगेटिव में इन कर रहा है, एंड देयर विल बी नो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है क्या? तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हुआ। मैग्नेटिक लाइंस, अगर एक सिंपल बार मैग्नेट है, यहाँ पर नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में इन कर रहा है। इनसाइड ऑल्सो the lines of forces will pass inside from south to north, outside north to south and inside south to north. तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो गया। इलेक्ट्रिक लाइन फोर्सेस आर डिसकंटिन्यूस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस। ये ऐसे करके, जैसे ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये कंटिन्यूस। तो इसका मतलब क्या है? ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है, एंड R is the correct explanation of A. That is the way how we have to proceed. Take another example. Third example. Electric field inside a hollow conducting sphere is 0. Electric field inside a hollow conducting sphere is 0. Reason: charge is present on the surface of the conductor. Now, can anyone try of this particular question? How you are going to try? So this is a question, and how we are going to proceed? हमको चेक करना होगा A और B, A और R दोनों सही है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर, एक स्फीयर है, अब ये कंडक्टिंग स्फीयर,
कंडक्टर। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, एज नो चार्ज इज देयर इनसाइड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट इज जीरो। क्या चीज जीरो होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो इसका मतलब पहला जो असर्शन है वो एकदम सही है। अब दूसरा रीजन जो है, चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं ये वाला सरफेस के अंदर एक चार्ज होता, इफ चार्ज प्लस क्यू चार्ज होता यहाँ पर इसके अंदर, तो ये अंदर चार्ज नहीं रहेगा, चार्ज विल कम ऑन टू द सरफेस। चार्ज हमेशा यहाँ से मूव होके बाहर में आ जाएगा इसके सरफेस पर। एकदम सही है। सो assertion एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। एंड अब ये देखना है कि वेदर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो हम देख रहे हैं चार्ज प्रेजेंट इन द ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज ऑफ द कंडक्टर। चार्ज अंदर जो चार्ज है वो चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है, सब इसके सरफेस में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर इज जीरो। एकदम सही है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी किसका? रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए, राइट। दिस इज द now come on to the question number 4. A high resistance is connected in series with the galvanometer of meter bridge। गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। रीजन क्या दिया? एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस द करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसको समझना होगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्या सही होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? रेजिस्टेंस जो गैल्वेनोमीटर में है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या होता है? इसका रेजिस्टेंस लो होता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट गैल्वेनोमीटर, हम लोग क्या करते हैं? एक हाई रेजिस्टेंस हमको यूज़ करना पड़ेगा। इसको अगर हाई रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करेंगे तो ये जल जाएगा, इट विल बर्न। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए हाई रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं? इसको यूज़ करते हैं इन सीरीज विद दिस, इसके साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस। ठीक, ये हम लोग यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर को बचाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ए हाई रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर ऑफ मीटर ब्रिज। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सेकेंड वाला पार्ट जो है, रीजन वाला पार्ट, इसको देखेंगे। वी हैव टू थिंक ऑफ एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेज द करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। अब देखें यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर। अगर रेजिस्टेंस I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर I और R के बीच क्या हुआ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। एज रेजिस्टेंस, और यहाँ पर क्या दिया हुआ? एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, तो करंट डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पर ये इंक्रीज दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, assertion. Torque on a coil is maximum when it is suspended radially in a magnetic field. Torque on a coil is maximum when suspended radially in a magnetic field. And reason, torque tends to rotate a coil. So we know in case of the assertion, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कॉयल को रखें, एक कॉयल है जिसको हम लोग, एक कॉयल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है? NIBA साइन थीटा। ये फॉर्मूला है BINA साइन थीटा। या अगर इसको याद रखने के लिए, टॉर्क इज इक्वल टू
टू साइन थीटा। ये याद रखने में इजी है, BINA। तो मालूम ये टॉर्क लगता है। अब रेडियल फील्ड यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सस्पेंडेड रेडियली। इसका मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 होगा तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BINA साइन 90। साइन 90 हो गया 1, हट गया। तो ये मैक्सिमम टॉर्क हुआ यहाँ पर, क्या मैक्सिमम टॉर्क लगता है, दैट इज द मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ यही चीज़ बोला, टॉर्क ऑन ए कॉइल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज सस्पेंडेड रेडियली इन मैग्नेटिक फील्ड। एकदम सही है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर? नाउ द सेकंड assertion is totally correct. Now comes to the reason. रीज़न क्या बोलता है, टॉर्क टेंड्स टू रोटेट एट कॉइल। अब यहाँ पर टॉर्क है, ये तो गैल्वेनोमीटर में भी हम लोग पढ़े हैं, टॉर्क है या मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग उसमें रखे हुए हैं सस्पेंड। तो टॉर्क लग रहा था यहाँ पर, ये फोर्स लग रहा है, इधर ये फोर्स लग रहा है, तो ये टॉर्क लग रहा है, ये इसको रोटेट कराएगा, इट रोटेट्स। तो रोटेट करा रहा है मीन्स एकदम सही है, टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। यस, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, हमको ये देखना है, इसका यहाँ पर ये चीज़ नहीं बोला है, इस रीज़न जो है इसका ए का रीज़न नहीं है। ठीक है, आर सही है, ए सही है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर आर की जगह ये होता देन इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर की जगह होता टी टॉ इज इक्वल टू, केवल यही दिया रहता दिस एंड थीटा इज 90, देन इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। टेक अनदर क्वेश्चन, असर्शन, ये मैग्नेटिज्म का है। मैग्नेटिक पोल्स cannot be separated by breaking a bar magnet into two pieces. Reason: when a magnet is broken into the two pieces, the magnetic moment will be reduced. Moment will be reduced to half. अब हमको दोनों चेक करना होगा। एसर्शन क्या बोला है, मैग्नेटिक पोल्स, ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको हम लोग कैनॉट बी ब्रोकन, कैनॉट बी सेपरेटेड, इसको हम यहाँ से तोड़ दिए, फिर ये पीस छोटा सा पीस बना, इसको फिर हम तोड़ दिए। ऐसे करके एटॉमिक लेवल में भी अगर हम पीस तोड़ रहे हैं तो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल कभी भी सेपरेट नहीं होगा। एट द एटॉमिक लेवल ऑल्सो इट कैनॉट बी सेपरेटेड। एट द एटॉमिक लेवल्स में भी ये कैन नॉट बी सेपरेटेड, इट कैनॉट बी सेपरेटेड। सो यहाँ पर यही चीज़ बोला है, मैग्नेटिक पोल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय ब्रेकिंग ए बार मैग्नेट इनटू टू पीसेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, एकदम सही है। अब हम लोग रीजन में आएंगे। रीजन देखेंगे क्या है, व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस द मैग्नेटिक मोमेंट विल रिड्यूस टू हाफ। हम देख लेते हैं, ये इतना बड़ा यहाँ था, ये नॉर्थ, ये साउथ, मान लेते हैं इसका एल एंड एल सेपरेशन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या हो जाएगा, दैट इज द पी से डिनोट कर सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट या स्मॉल एम से। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू ट्वाइस एल, पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ दोनों का सेम होगा नॉर्थ एंड साउथ का, वो आइदर पोल स्ट्रेंथ इनटू ट्वाइस एल। तो इसको हम अगर मान लेते हैं ब्रेक कर दिए, एल ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम इंटू ट्वाइस एल बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, एम इंटू एल। पूरा सेपरेशन का हाफ हो गया।
तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ. मैग्नेटिक मोमेंट रिड्यूस टू हाफ. यस नो, मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑल्सो रिड्यूस टू हाफ. ठीक, एकदम सही है. मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा, उसको हाफ कर दिया तो राइट. अब मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो गया तो यहाँ क्या बोला है, व्हेन मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसेस द मैग्नेटिक मोमेंट विल रिड्यूस टू हाफ. ये भी सही है. आर इज ऑल्सो करेक्ट. अब थर्ड पॉइंट हमको देखना है, वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. अब आर क्या ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? आर का यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यहाँ तो ये ब्रेकिंग बार मैग्नेट इनटू टू पीसेस कैनॉट बी, इसका रीज़न नहीं है. सो आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग. तो इसमें 3 स्टेप. पहले असर्शन को ध्यान से हमको पढ़ना होगा, रीज़न को ध्यान से पढ़ना होगा, उसके बाद हमको देखना होगा थर्ड स्टेप में वेदर रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट. देन वी हैव टू कम टू द पर्टिकुलर कंक्लूजन. ओके.